السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے سسٹرز، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج آپ کا سبق ہے تختی نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے آپ کا تختی نمبر 25۔ الحمدللہ ہمارے تنوین نون ساکن کے سارے قاعدے ہو گئے ہیں، میم ساکن کے سارے قاعدے ہو گئے ہیں۔ اب قاعدہ اختتام پر جا رہا ہے، آپ کا پورا ہونے والا ہے۔ تو آج یہ تختی نمبر 25 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے رسم الخط کے بارے میں۔ رسم الخط کے بارے میں، رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، قرآن پاک کو لکھنے کا طریقہ رسم الخط کہلاتا ہے۔ آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ آپ کو بہت ساری جگہ قرآن کریم میں الف واو یا دکھائی دیں گے لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے، ان پر کراس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جیسے اس پر وقف نہ، جبکہ اس پر وقف نہ کرا جائے۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ حروف علت اصل میں بولتے ہیں بیمار حروف کو، علیل حروف یعنی ان میں بیماری پائی جاتی ہے۔ یہ بیمار حرف ہوتے ہیں، اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ ان سے اپنی حرکت نہیں سنبھالی جاتی۔ کہیں کہیں تو یہ اپنی حرکت پیچھے والی کو دے دیتے ہیں، ما قبل کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے خود ہی چلے جاتے ہیں۔ حروف علت ایسے ہوتے ہیں، یہ الف واو یا، تو یہ اصل میں علیل حروف ہوتے ہیں، بیمار حرف کو بولتے ہیں حروف علت۔ تو یہ بہت جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ یہ کیا کرتے ہیں، اپنی حرکت ان سے سنبھالی نہیں جاتی، اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے کو دے دیتے ہیں اور خود یا تو مطلب باہر ہی آ جاتے ہیں، لفظ سے باہر نکل جاتے ہیں، یا صرف لکھنے میں رہتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے یہاں دونوں طریقے بتا دیے گئے ہیں، کریکٹ بھی اور انکریکٹ بھی، اور یہ آپ کو سب قرآن کریم میں ملیں گے۔ یہاں حوالے بھی دے رکھے ہیں کہ پارہ نمبر 4 میں ہے، رکو نمبر 6 میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے سب جگہ انہوں نے حوالے بھی دے رکھے ہیں کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوئے، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھتے۔ أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ مِن نَّبَإِ مَلَئِهِ وَلَأَوْضَعُوا ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِشَيْءٍ لَكِنَّ لَأَصْبَحَنَّهُ لِيَرْبُوَ فِي لَإِلَى الْجَحِيمِ لِيَبْلُوَ نَبْلُوَ بِئْسَ الْإِسْمُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَ قَوَارِيرَ مَلَئِهِمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ مُوسَى عِيسَى زَكَاةَ
स्वलाता हयातिन मिशकातिन। इस तरह से आपने इसकी रवान पढ़नी है। आइए अब इजरा देखते हैं। इजरा देखिए, अब जैसे यहाँ पर आफा, अब देखिए यहाँ अलिफ मद्दा नजर आ रहा है आपको, हमजा मुतहर्रिक, फा पर हम अलिफ मद्दा करके पढ़ते, अफा इसको खींचते, लेकिन यहाँ पर देखिए अलिफ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखने में है, पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा मुतहर्रिक नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से मीम आ रहा है, तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। मीम पर अलिफ मद्दा है, ता मुतहर्रिक है, तो नीचे वाला करेक्ट है बिल्कुल और ऊपर वाला इनकरेक्ट है। देखिए, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, अफ़इम माता, अफ़इम माता। कहीं आपको ये क्रॉस का निशान मिलेगा भी और कहीं नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो उस पर कोई अलामत नहीं होगी। इसी तरह इसका इजरा देखिए, ला इलाही, लाम मुतहर्रिक कंसीडर करेंगे हम इसको, यहाँ हुरूफ इल्लत में से अलिफ आ रहा है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा मुतहर्रिक है और लाम भी मुतहर्रिक है, अल्लाह के लाम से पहले जबर है, तो अल्लाह के लाम को पुर करके पढ़ेंगे। हुरूफ शमसी में से अलिफ लाम आ रहा है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे, पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, और अल्लाह के लाम पर आपने सिला मद्दा भी दिख रहा है, तो इसको खींचेंगे हाँ मुतहर्रिक। ला इलाही, अब हम इसे खींचेंगे नहीं, ला इलाही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, ला इलाही। ये पारा नंबर 4 रुकू नंबर 8 में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हमजा मुतहर्रिक नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से ता नजर आ रहा है, तो यहाँ गुन्ना और इक्फा मतलब इक्फा करके पढ़ेंगे, ता मुतहर्रिक और बा पर वाव मद्दा है, वाव मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, ये बड़ा वाला मद अटैच मद है, तो इसको हम 2 से लेकर 5 अलिफ के बराबर तक खींच सकते हैं, और ये अलिफ जो आ रहा है ये हुरूफ इल्लत में से, इसको खींचा नहीं जाएगा, इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, सारे पिछले कवाइद आ रहे हैं, सब नोट करिए आप। देखिए यहाँ यूमिन का कायदा आ रहा है, और यहाँ तो बस सारी हरकत ही है, यहाँ वाउलीन आ रहा है, वाव मद्दा है, ये भी वाव मद्दा है, सब मुतहर्रिक है। यहाँ देखिए नून साकिन के बाद यूमिन में से नून आ रहा है, तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे लम, इस तरह से। दाल साकिन है तो कलकला हो रहा है, आइन मुतहर्रिक है, वाव मुतहर्रिक है, और अलिफ हुरूफ इल्लत में से आ रहा है, लन नदउवा, इस तरह से पढ़ा जाएगा। बाकी सारे पिछले ही कायदे हैं। आइए आगे देखते हैं, अभी हमने अलिफ का एग्जाम्पल देखा, हुरूफ इल्लत में से अलिफ, अब वाव और या को और देखते हैं। देखिए लिया फी, यहाँ पर भी अलिफ का ही एग्जाम्पल है, लाम मुतहर्रिक है, या मुतहर्रिक है, और रा साकिन से पहले जबर है तो पुर होगी, बा मुतहर्रिक है, वाव मुतहर्रिक है, हुरूफ इल्लत में से अलिफ आ रहा है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, फा पर या मत आए, लिया फी, इस तरह से पढ़ेंगे, सारे अलिफ के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देखिए मूसा, मूसा में देखिए या का एग्जाम्पल आ रहा है, मुंह पर वाव मद्दा है, मीम पर सीन पर सिला मद्दा है, और ये या हुरूफ इल्लत में से आ रहा है, ये पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, मूसा, आइन पर या मद्दा है, सीन पर खड़ा जबर यानी सिला मद्दा है, और हुरूफ इल्लत में से या आ रहा है, ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ईसा, अब ये वाव के एग्जाम्पल से, जा मुतहर्रिक है, काफ पर सिला मद्दा है, हुरूफ इल्लत में से वाव आ रहा है, तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखने में है ये, ठीक है। ता मुतहर्रिक है, तो कैसे पढ़ेंगे, ज़काता, और जा हुरूफ सफीर में से, तो सीटी वाली आवाज आनी चाहिए, ज़काता। इसी तरह ये देखिए स्वाद मुतहर्रिक है, लाम पर सिला मद्दा है, हुरूफ इल्लत में से वाव आ रहा है, ये पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखने में है, और ता मुतहर्रिक है, सलाता,
सलाता। इसी तरह हा मुतहर्रिक है, यहाँ पर सिला मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। वाओ हुरूफ इल्लत में से आ रहा है और ये लिखने में सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा। ता पर तनवीन है, हयातिन। कहीं आपको देखो ऐसे भी मिलेगा हयातिन लिखा हुआ, ऐसे भी मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से वाओ बिल्कुल ही हज़फ हो गया, है ही नहीं वाओ। तो यहाँ देखिए मूसा, यहाँ पर या हज़फ हो गया है, तो कहीं कहीं ये लिखने से भी चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है क्रॉस का निशान बना नहीं होता, लेकिन इस पर अलामत लिखी हुई नहीं होगी, तो आप इसको ना हुरूफ इल्लत कंसीडर करेंगे, और हुरूफ इल्लत 3 होते हैं, अलिफ वाओ या। ईसा, मिशकातिन। मिशकातिन में देखिए मीम मुतहर्रिक, शीन हरफ साकिन, काफ पर सिला मद्दा, वाओ हुरूफ इल्लत में से आ रहा है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा। ता पर तनवीन है, और देखिए यहाँ तो लिखने से भी हज़फ हो गया है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मिशकातिन। चाहे इस तरह से लिखा हुआ मिले आपको कुरान में, चाहे इस तरह से मिले, लेकिन आपने देखा है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वहाँ ये सलात लिखा हुआ होता है, ठीक है। अकीमुस्सलाता में भी ये लिखा हुआ होता है, लेकिन आपने पढ़ना है कि सलावाता नहीं पढ़ना है, इसको सलाता पढ़ना है। और ये तो सब इंशाल्लाह आपके समझ में आ ही जाएंगे। कवारीरा, यहाँ रा बारीक होगी, यहाँ रा पुर होगी। कवारीरा वला नअबुदु मा अबदतुम। सारे पिछले कायदे आ रहे हैं। वाओ मुतहर्रिक है, लाम पर अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में तो बड़ा वाला मद्दे मुनफसिल होगा, और 2 से लेकर 5 अलिफ के बराबर तक खींचा जाएगा। नून यहाँ हम मुतहर्रिक पढ़ेंगे, और अलिफ हुरूफ इल्लत में से आ रहा है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। आइन पर अलिफ मद्दा, बा पर बा मुतहर्रिक, दाल पर तनवीन, तनवीन के बाद देखिए अब मीम आ रहा है। भले ही यहाँ पर अलामत आपको तशदीद वाला मीम नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तनवीन के बाद मीम है, तो आप समझिए कि तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो हुरूफ युमिन में से है, तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, लिखना भूल जाते हैं, तो आपने यहाँ गुन्ना करके पढ़ना है। मीम पर अलिफ मद्दा है, आइन मुतहर्रिक है, बा मुतहर्रिक है, दाल हुरूफ कलकला में से है, और ता पर तशदीद है, और मीम हरफे साकिन है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो कि मतलब पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा तशदीद पर हो, मुशद्दद हो, तो साकिन हर्फ को निकाल दिया जाता है, मुशद्दद से मिलाया जाता है। बा को हम ता से मिलाएंगे। किस तरह? वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अबद तुम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? अबद तुम। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।